Good morning to everyone and welcome once again to our nuclear physics lectures. In the previous some videos, we are discussing about the elementary particles as well as the nuclear detector series, and the best one, that is the nuclear detector series, we have been successfully covered. Now today we will see the third portions of our chapter, that is the interactions of charged particle with matters. So before starting of this article, I want to tell you some amount of the present topics which is covered in this phenomenon. First of all, here, that is interactions of the charged particles. We know very well the charged particles, it is nothing but the alpha particles, beta particles and gamma radiations. So whenever we are going to discuss about these interactions of charged particles, at that time we also covered these three particles. So after that we are not going to discuss the different of that particles. These all are covered in one phenomenon. What portion is remaining? The another one portion, that is the range, straggling, stopping power. These 3 points are covered in one video, which is present on a next day. So after that, some effects are included according to the gamma radiations. It is completely based on the gamma radiations. These effects is nothing but the photoelectric effects as well as the Compton's effects. I know we are already studied the photoelectric effect in the standard 12 as well as the BSCs. But here the photoelectric effects are same. The principles are same. But here these photoelectric effects are studied with the help of gamma radiations. Similarly, the Compton's effects. After that, the pair productions was there, pair productions, third point. And lastly, the another one, final end of this topic is nothing but the annihilations of electrons and positron pairs. So now guys, today we will see the interactions of charged particles with matters. We know very well the radioactive elements. Whenever these radioactive elements are passing through a matters, the radioactive elements having a charge, that means they are the charged particles. Whenever these charged particles are passing through the matters, at that time they loses its kinetic energy, or there are the two possibilities was there. The first one, they loses the kinetic energy or is deflected from its original path. They are deflected from their origin path, and such kinds of the process are happens in different type. Now let us see the first one process, that is the elastic collisions. Elastic collisions. इलास्टिक कोलिजन्स. देखो इन दैट केस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रोसेस आएगी, एक इलास्टिक दूसरी इन इलास्टिक्स आएगी. बट इलास्टिक प्रोसेस एक बार आएगी आपकी विथ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन और एक बार आएगी विथ एटम्स ओनली.
तो फर्स्टली हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज इलास्टिक कोलिजन विथ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स. हियर वी सी विथ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन. देखो पहले प्रोसेस में क्या है, इलास्टिक कोलिजन होगा. किसके साथ होगा इलास्टिक कोलिजन? विथ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स. अब ये जो कोलिजन होगा, कोलिजन्स, कोलाइड्स विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज द कोलिजन्स. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोलिजन्स बोलते हैं. ये जो कोलिजन होगा, सच कोलिजन्स रिप्रेजेंट द रैमसॉर इफेक्ट. रैमसॉर इफेक्ट किस चीज का है? दैट इज द स्कैटरिंग इफेक्ट. वन काइंड ऑफ द स्कैटरिंग होता है उसके अंदर. कब होता है? लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ होता है. दैट्स वाई ये जो कोलिजन होगा, ये कोलिजन होगा ओनली फॉर द केस ऑफ वेरी लो एनर्जी. सिर्फ लो एनर्जी के केस में होगा. उसकी एनर्जी कितनी होगी? लेस देन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसके नीचे ही होगा तो ही ये कोलिजन्स होगा. इसके नीचे ही होगा तो दीज आर इंसिडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. तो फर्स्ट वन, इलास्टिक कोलिजन विद द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स. क्या होगा ये कोलिजन्स के अंदर? ये कोलिजन्स के अंदर कौन सा इफेक्ट दिखेगा? दैट इज कॉल्ड एज द रैमसॉर्स इफेक्ट. और ये रैमसॉर्फ इफेक्ट क्या सिग्निफिकेंट करता है? दीज आर सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द केस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, सॉरी वेरी लो एनर्जी. और एनर्जी कितनी चाहिए? दैट इज द मिनिमम ऑफ दीज लॉस, लेस देन द 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये हो गया इलास्टिक कोलिजन्स विद एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स. तो दूसरा क्या होगा? मैंने बताया दो ही कोलिजन्स देखने हमें, एक इलास्टिक, तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा इन इलास्टिक. दूसरा कौन सा होगा? इन इलास्टिक कोलिजन्स. इन इलास्टिक कोलिजन्स विथ अनदर, दैट इज एटॉमिक इलेक्ट्रॉन. अब बोलो, बताओ कौन सा कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन है. पहला कौन सा पढ़ा? इलास्टिक कोलिजन्स पढ़ा. अब इन इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होगा? दीज आर यूजुअली वन काइंड ऑफ द प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म. ये क्या है? प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म है बाय विच चार्ज पार्टिकल लॉसेस देयर काइनेटिक एनर्जी इन एन ऑब्जर्वर. जो ऑब्जर्व कर रहा है, क्या जो ऑब्जर्व कर रहा है, देखो पार्टिकल आ रहे हैं. चार्ज पार्टिकल कहां आ रहे हैं? चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं मैटर्स के अंदर. मैटर्स के अंदर आने के बाद क्या हो रहा है? व्हेन दे आर कंप्लीटली एंटर्स इन दी मैटर्स, तो क्या होगा? कोलाइड्स होंगे, एक दूसरे को टक्कर देंगे. छोड़ो रास्ता छोड़ो, मुझे आगे जाना है. व्हाई? बिकॉज दे आर अ चार्ज पार्टिकल, दे हैव द मैक्सिमम एनर्जी. जो रास्ते में आएगा उसको उड़ाते जाएंगे, उसको खुद की एनर्जी देते जाएंगे. दैट्स व्हाई दे लॉस द काइनेटिक एनर्जी. That's why they lost the kinetic energy. और ये किस चीज में हो रहा है? ये हो रहा है इन इलास्टिक कोलिजन. वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जा रही है? मैटर्स में ही जा रही है ना. तो मैटर्स में जो ऑब्जर्वर होंगे, जो ऑब्जर्व करने वाले एलिमेंट्स होंगे, वो क्या करेंगे? वो उसको क्या कर लेंगे? ऑब्जर्व कर लेंगे, सक कर लेंगे, एनर्जी खुद में ले लेंगे. तो क्या होगा? जो भी द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर रेज्ड टू हायर एनर्जी, जो भी कुछ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एनर्जी रेज करेंगे. और दूसरा क्या करेंगे? और दे आर इजेक्टेड फ्रॉम द एटम्स. या तो एटम से इजेक्ट हो जाएंगे. एटम से इजेक्ट हो रहे मीन्स क्या हो रहा है? हम लोगों ने पढ़ा है क्या हो रहा है? दैट इज द आयोनाइजिंग. एक तो क्या होगा? आयोनाइजिंग होगा, या तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, हाईली एनर्जेटिक हो जाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? आयोनाइजिंग हो जाएगा उसका. सो दैट इज द कंप्लीटेड ऑफ द इलास्टिक कोलिजन्स एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स. दीज आर द टू पार्ट्स. नाउ द थर्ड वन दैट इज ए बी हो गया. अब ये सी, मैं इसको ही लिखता हूं, इलास्टिक कोलिजन विथ, अब एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, विथ एटम्स ओनली. अब किसके साथ है? सिर्फ एटम के साथ है. अब किसके साथ है? सिर्फ एटम्स के साथ है. ये मत देखो, अब ये मैं इसको, चलो इसको भी हेडिंग बना देता हूं मैं. चलो ये भी बन गई. नेक्स्ट वन हेडिंग डी, ये भी चलो ये हो गया खत्म. नाउ नेक्स्ट वन. अब क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा. इलास्टिक कोलिजन किसके साथ होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा विद द एटम्स. तो क्या होगा? सबसे पहले एनर्जी लॉस होगी. एटम के साथ कोलिजन्स हो रहा है ना, कोलाइड्स विद द एटम्स, एटम के साथ कोलाइड्स हो रहे हैं. क्या होगा? एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी. The energy is loss only
which is required by conservation of momentum between these two particles. What I say? In the case of elastic collisions with atom, the energy loss is only which is required by conservation of momentum between the two particles. So आगे क्या होगा? नेक्स्ट वन, ये जो कोलिजन्स होगा, these collisions are less frequent. These collisions are less frequent in case of heavy charged particles. ये जो कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन्स विथ एटम, ये कोलिजन किसमें कम से कम होगा? हेवीली चार्ज्ड पार्टिकल्स. तो हमारे पास हेवीली चार्ज्ड पार्टिकल्स कौन कौन से? हम लोगों ने देखा मेसॉन्स, देखा कहां देखा? इन दैट एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मेसॉन्स में देखा. उसके बाद प्रोटॉन्स में देखा, ड्यूटेरॉन्स, और हमें पता है हेवीली चार्ज्ड पार्टिकल कौन से है? दैट इज द अल्फा पार्टिकल्स. कौन से है वो? अल्फा पार्टिकल्स. और जो हेवी आयंस है, वो हेवी आयंस कहां पे है? फ्यूजन फ्रैगमेंट्स में हम लोगों को मिले थे हेवी आइटम्स. इन सब के अंदर इसकी क्या है? लेस फ्रीक्वेंट्स, बहुत कम होता है. बट मच मोर फ्रीक्वेंट, ये होगी उसकी एक बाजू होगी, इसमें कम होता है. तो ज्यादा किस में होता है? ज्यादा होता है इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल्स में. कौन कौन से इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल? दैट इज द ई माइनस प्लस, ई माइनस और ई प्लस. ये दो चीजों में हमारा क्या होता है? दी मच मोर फ्रीक्वेंट होता है. अब ये दो केसेस, ये तीन केसेस हम लोगों ने देखा. इलास्टिक कोलिजन्स विथ एटॉमिक एनर्जी देखा. अब क्या देख रहे हो? इलास्टिक कोलिजन विथ एटम. तो उसी तरह हमें क्या देखना है? इन इलास्टिक कोलिजन्स विथ एटम्स. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? कहीं बुक्स में आपको एटॉमिक न्यूक्लियाई भी दिया गया है, कोई ना, एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई. ओके, ले लो, चलो न्यूक्लियाई ले लो, काहे परेशान होते हो, ले लो एटॉमिक न्यूक्लियाई. So the next one, that is the collision of this type are less probable. This type of collisions are less probable. बहुत कम होता है ये. And are therefore for the heavy particles. So देखो इनइलास्टिक कोलिजन्स देख रहे हैं हम लोग. इनइलास्टिक कोलिजन्स में क्या होता है? द इमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जो भी इमिशन हो रहा है, इमिशन तो होगा ऑब्वियसली, द इमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस स्टेट्स बाय एन in elastic interactions with heavily charged particle, the process fall into this category. बहुत बड़ा सेंटेंस बोल दिया मैंने, नहीं समझ में आया. नाउ लेट अस एक्सप्लेन. जो भी इमिशन ऑफ एनर्जी होगा, किसके फॉर्म में होगा? इमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इमिशन ऑफ एनर्जी in the form of electromagnetic radiation and the excitation of a nucleus state. Excitation of nucleus state किसके इंटरेक्शन से हो रहा है? ये इनइलास्टिक इंटरेक्शन से हो रहा है. किस में हो रहा है? हेवीली चार्ज पार्टिकल्स के अंदर हो रहा है. ये सब प्रोसेस किसके अंदर आती है? इन इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर आती है. सो अब कुछ अनदर फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव लॉसेस है. देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं. दी अनदर फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव लॉस, इसके अंदर क्या है? जो भी रेडिएशंस है विच इज अराइजेस फ्रॉम द लॉन्जिट्यूडिनल पोलराइजेशन, लॉन्जिट्यूडिनल पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम की ओर से आने वाले जो भी रेडिएशंस है, these are charged radiations are passes through at exciting velocity. Exciting बोल दिया मैंने. Existing velocity, the phase velocity of light the medium. देखो
हर एक सेंटेंस को बार बार ब्रेक करके उसको समझाना बहुत बहुत मुश्किल चीज है। फिर भी मैं ये समझा देता हूं। अब अनदर फॉर्म ऑफ रेडिएशंस भी होंगे, बराबर है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स आपके कहां पे आ रहे हैं, मैटर्स में आ रहे हैं। इसका मतलब वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव लॉस हो रहा है। रेडियो एक्टिव लॉस होगा, दैट मीन्स दैट वॉज देयर द सेरेंक्वाई रेडिएशंस वॉज देयर। ये सेरेंक्वाई रेडिएशंस कहां पे अराइजेस हो रहे हैं? इट इज इन दी अराइजेस फ्रॉम दी लॉन्जिट्यूडिनल पोलराइजेशन। लॉन्जिट्यूडिनल पोलराइजेशंस के वहां से फॉर्म हो रहे हैं, और दीज आर ट्रांसपेरेंट मीडियम। वो कैसे है? वन काइंड ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट मीडियम। whenever a charge particle passes through it, जब चार्ज पार्टिकल्स उसमें से क्या होंगे? पासेस होंगे। जब वो पासेस होंगे तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? एक्सीडिंग वेलोसिटी होगी, और दिस एक्सीडिंग वेलोसिटी इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दैट मीन्स द स्पीड देखो उसकी कितनी होगी। हम लोगों ने देखा था कि ये जो प्रोसेस होगी इट इज 10 to the power -7 to 10 to the power -9 के बराबर होगी सेकंड, इतने कम समय में होगी। सो गाइज, आई थिंक here our interactions of charged particles with matters are completed. In the next lectures we are going to study it, that is range, straggling and stopping power. Another lectures having the lots of mathematical portion is there. So I will request to all of you, please take, whenever we are seeing this video, next video, at that time please take the paper and pen simultaneously to solve these mathematical expressions with me. So guys, I hope you have enjoyed this video. So guys, thank you so much and have a nice day.